ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئکن بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ ٹائملی دیکھ لیں۔ میرے لیے اپنے جذبات پر قابو پانا بہت مشکل تھا۔ میرے ساتھ وہ معاملہ تھا کہ میرے پاس میٹھے پانی کا کنواں تھا، مگر میں اپنی پیاس نہیں بجھا پا رہا تھا۔ میں اپنا حق رکھتے ہوئے بھی اپنے حق کو استعمال نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے جذبات اب مچلنے لگے تھے اور میری خواہشات مجھے تنگ کرنے لگی تھی۔ اب میں اپنی ان خواہشات کی تکمیل کے لیے حرام راستے پر چلنے کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ ایک دن میں یہی سوچ رہا تھا جب میرے دوست نے مجھے کہا کہ تمہاری شادی کو 6 مہینے ہو گئے ہیں، کب میں خوشخبری سنا رہے ہو۔ دوست کی بات سن کر میں گڑبڑا گیا۔ ہم دونوں میں بہت زیادہ بے تکلفی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے ہر بات آسانی سے کر لیا کرتے تھے، مگر یہ بات ایسی تھی جو میں اسے بتانے سے ہچکچا رہا تھا۔ میں اسے یہ بات کیسے بتاتا کہ 6 مہینے ہونے کے باوجود بھی ابھی تک میری بیوی سے میرا کوئی تعلق نہیں بنا تھا۔ مجھے خاموش اور گمسم دیکھ کر اسے اپنے لفظوں کا احساس ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اتنا پریشان ہونے والی بات کون سی ہے؟ ابھی محض 6 مہینے ہی تو ہوئے شادی کو، اللہ نے چاہا تو جلد ہی وہ تم پر کرم کر دے گا۔ میں نے تو ازرا مذاق تم سے پوچھا ہے، تم تو پریشان ہی ہو گئے۔ اس کی بات سن کر میں زبردستی مسکرایا اور پھر ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گیا۔ یہ وہ سوال تھا جو 6 ماہ میں میرے کتنے ہی دوست مجھ سے پوچھ چکے تھے، اور ہر بار میں جب شرمندگی سے نفی میں سر ہلاتا تو مجھے الٹے سیدھے مشورے دینے لگتے۔ کبھی کوئی مجھے کسی حکیم کا بتاتا تو کوئی کبھی مجھے طاقت بڑھانے کا ٹوٹکا بتاتا۔ یہ سب باتیں سن کر میں شرمندگی سے زمین میں گڑ جاتا تھا۔ اب میں ان کو یہ چاہ کر بھی بتا نہیں سکتا تھا کہ میرا بھی اب تک بیوی سے کوئی تعلق نہیں بنا۔ اگر میں ایسا کہتا بھی تو بھی میری مردانگی پر ہی سوال اٹھایا جا سکتا تھا۔ تب مجھے زیادہ لوگوں کے مذاق کا نشانہ بننا پڑتا اور میری بیوی کو بھی طرح طرح کے سوالات سننے کو ملتے۔ تبھی میں نے دل ہی دل میں جھنجھلانے کا فیصلہ کیا۔ جب دوستوں کے معنی خیز اشارے اور جذبات کو ابھارنے والی باتیں سننا تو میرے جذبات پھر سے بیدار ہونے لگتے تھے، میری خواہشات مجھے تنگ کرنے لگتی تھی۔ تب مجھے اپنی بیوی پر غصہ آنے لگتا تھا جو نہ جانے کیوں ایک معمولی سی بات پر ڈر رہی تھی اور مجھے اپنے قریب تک نہیں آنے دے رہی تھی۔ حالانکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، مجھ سے پیار بھی جتاتی تھی، مگر یہ تعلق قائم کرنے پر وہ کسی طرح بھی رضامند نہیں تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کا ڈر خوف کیسے نکالوں۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا جس کے کہنے پر وہ یہ سب کر رہی ہوتی، مگر سوال یہ تھا کہ پھر وہ یہ سب کر کیوں رہی تھی؟ شاید اس کا کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا۔ اس کے سامنے اگر میں نفسیاتی مسائل کا نام لیتا تو وہ غصہ کرنے لگتی تھی، بہت سمجھتی تھی کہ میں اسے پاگل کہہ رہا ہوں۔ وہ تو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے پر بھی تیار نہیں تھی۔ اب میں جس مصیبت سے گزر رہا تھا، جس پریشانی کو میں جھیل رہا تھا، میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے، ورنہ یوں ساری زندگی میں اسی مسئلے کے ساتھ تو نہیں گزار سکتا تھا۔ اگر ابھی وقت پر ہی میں اس کی تدبیر نہ کر لیتا تو یہ مسئلہ پہلے سے بھی زیادہ گھمبیر ہو سکتا تھا۔ اس دن جب میں گھر میں آیا تو میں نے اپنی بیوی کو دو ٹوک انداز میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی، اس کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی اور اس کی پیار بھری باتیں اور محبت بھری آواز سن کر میں ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ نہ جانے وہ کس کے ساتھ اس قدر محبت کی باتیں کر رہی ہے، تو کیا سچ میں کوئی ایسا تھا جس کی وجہ سے مجھے دھوکہ دے رہی تھی وہ؟ اس سوچ کا آنا ہی تھا کہ ایک اشتعال کی لہر میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھول لیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری بیوی کتے اپنے پالتو کے ساتھ پیار بھری باتیں کرنے میں مصروف تھی، اس کے ساتھ لاڈ کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میری سانس میں سانس آئی، ورنہ ایک لمحے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں سوچ لیا تھا۔ جب میں اس کے پاس جا کر بیٹھا تو اسے جذباتی لٹاتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں جب بھی اسے ایسی نگاہوں سے دیکھتا تھا وہ گھبرا جایا کرتی تھی۔ وہ سمجھ جاتی تھی کہ میرے دل میں اس کے لیے پیار امڑ آ رہا ہے۔ ایسی صورت میں وہ مجھ سے دور بھاگنے لگتی تھی، اور آج بھی حسب معمول ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ فوراً سے میرے لیے کھانا لگانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ میرا یہ ہمیشہ سے معمول تھا کہ گھر آتے ہی ساتھ میں کھانا کھایا کرتا تھا۔ رات کو جب وہ تمام کاموں سے فارغ ہو کر بستر پر دراز ہوئی تو میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ آج تمام حدیں توڑ دوں اور اپنے اور اس کے درمیان تمام حجاب دور کر دوں۔ یکدم ہی اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور خوف سے وہ بری طرح کانپنے لگی تھی۔ اتنی دیر تک میں اس کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا اور پھر تھکے ہارے انداز میں اسے میں نے خود سے علیحدہ کر دیا۔ میرے مچلتے جذبات یکدم ہی سرد پڑ گئے تھے اور اسے کہنے لگا کہ تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے؟ تم کیوں میرے قریب نہیں آتی؟
मेरा इतना ये कहना था कि वो फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी कि मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या मसला है, बस मुझे डर लगता है और मैं ये सब नहीं कर सकती जो आप मुझसे चाहते हैं। अब की बार मैं झुंझुलाते हुए अंदाज में कहने लगा कि तो तुमने शादी क्यों की थी? फिर अपने माँ बाप को ये बात पहले ही बता देती। मेरी बात सुनकर वो फिर से जोर जोर से रोने लगी। तब मुझे अपने अल्फाज की संगीनी का एहसास हुआ। भला उसे क्या मालूम था कि उसके साथ ये मसला भी हो सकता है। तभी मैंने उसे समझाया कि फिक्र मत करो, कल मैं तुम्हें किसी डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरी बात सुनकर वो मजीद गड़बड़ा गई और कहने लगी कि नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी, मैं खुद को समझा लूंगी। उसकी बात सुनकर मैंने सर थाम लिया और फिर उसे कुछ कहे बगैर अब मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मैं उसे डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाऊंगा। आखिर इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना चाहिए। यूं मैं कब तक लोगों की बातें सुनता रहूंगा। वो क्या जाने कि मुझे दोस्तों से मजाक मजाक में क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। यूं भी अब खुद को इससे दूर रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था और अब मैं मजीद अपने जज्बात पर बंद नहीं बांध सकता था। एक मर्द शादी ही इसलिए करता है ताकि उसे बीवी का सुख मिल सके, जब वो थका हारा घर आए बीवी की सूरत में उसे सुकून मैसर हो। इधर मैंने अपने दोस्त से बातों बातों में एक साइकियाट्रिस्ट का पता पूछ लिया था। वो शहर का जाना माना साइकियाट्रिस्ट था। लोग दूर दूर से उसे मशवरे लेने के लिए आते थे। मैं भी अपनी बीवी को इसके पास ले जाना चाहता था। मैं इससे मिलने के लिए उसके क्लिनिक पर गया। सारा मसला जब उसे बताया तो वो मुझे तसल्ली देने लगी कि सब ठीक हो जाएगा। वो मेरी बीवी के जहन में इस डर खौफ को निकालने की अपनी पूरी कोशिश करने लगा। मैं इसकी बातों से बहुत पुरुमीद होकर घर वापस आया था। आज मैं खिलाफे मामूल अपने घर 1 घंटा पहले आ गया था। मुझे साइकियाट्रिस्ट ने कहा था कि मुझे ज्यादातर वक्त अपनी बीवी के साथ खुशगवार अंदाज में गुजारना चाहिए, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करनी चाहिए। वो खुद ही मेरे साथ ताल्लुकात बनाने के लिए तैयार हो जाएगी और खुद ही पहल करेगी। यही सोचकर मैं घर में पहले आ गया था और आज उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारूं और उसे कहीं बाहर लेकर जाऊं। मैंने अपने जहन से तमाम मनफी सोचों को झटक दिया था और जब कमरे में दाखिल होने लगा तो अंदर से मेरी बीवी की प्यार भरी बातों की आवाज सुनाई दे रही थी और ये सारा प्यार उस कुत्ते के लिए था। ये सोचकर मैं हंस पड़ा कि मुझसे अच्छा तो वो कुत्ता है जिस पर वो अपना प्यार लुटा रही है। मगर फिर यकदम ही अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो गई। इन आवाजों को सुनकर मैं चौंक गया। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था और अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे कमरे में इस वक्त मेरी बीवी के साथ कौन था? इसका मतलब ये था कि मेरी बीवी मुझसे झूठ बोल रही थी। वो मुझे धोखा दे रही थी। यकीनन उसकी जिंदगी में कोई और मर्द था जिसकी वजह से वो मेरे करीब नहीं आ रही थी और मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ही कमरे में वो इस मर्द के साथ थी, मेरा हक उस पर लुटा रही थी। ये सोच ही मुझे तड़पाने के लिए काफी थी। वो मुझे कब से बेवकूफ बना रही थी। मैंने गुस्से से दरवाजा खोला और जब कमरे में कदम रखा तो मैं दिल में कितने ही अरमान जगाकर अपने उजला अरूसी में दाखिल हुआ था। दोस्तों की छेड़छाड़ और मायने खेज बातें मेरे जज्बात को उभारने के लिए काफी थी। तभी मैं इनकी बातों से महजूज होता हुआ खुशकुन ख्याल में खोया अपने कमरे में दाखिल हुआ था। मगर ये क्या, कमरे की अबतर हालत मेरे जज्बात का जनाजा निकालने के लिए काफी थी। मुझे अपनी बीवी के बिगड़े हुए मूड का अच्छे से अंदाजा हो गया था। तमाम चीजें बिखरी पड़ी थी और वो भी हर चीज से बेनियाज होकर लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट चुकी थी। कमरे में जीरो की रोशनी ऑन थी जिसमें यह मंजर देखकर मैं हक तक रह गया था। मैंने आज के हवाले से कितने ही ख्वाब देखे थे, कितने ही सपने सजा लिए थे और कितनी ही बातें सोची थी जो मुझे इस वक्त अपनी बीवी से करनी थी। मगर वो हर एक चीज से बेनियाज होकर सो रही थी। मैं बुझे दिल के साथ कपड़े बदलकर उसके पास जब आकर बैठा तो वो गहरी नींद में थी, सोते हुए बहुत ज्यादा मासूम भी लग रही थी। एक पल को मुझे उस पर गुस्सा आया था, मगर जब मेरी उसके मासूम चेहरे पर नजर पड़ी तो मैंने अपने दिल को समझा लिया कि हो सकता है आज वो बहुत ज्यादा थकी हुई हो और मजीद जागना उसके लिए मुमकिन ना हो। मेरा शिद्दत से दिल चाह रहा था कि मैं उसके साथ कोई गुस्ताखी करूं, इस बार अपना इस पर प्यार लौटाऊं। बहुत मुश्किल से मैंने अपने दिल को समझाया और फिर सोने की कोशिश करने लगा। बिलाखिर नींद की देवी मुझ पर मेहरबान हो गई थी। अगला दिन भी अफरा तफरी के लिए हुआ था। घर में मेहमान थे और शाम को ससुराल वाले भी वलीमे के फंक्शन के बाद बकलावे की रस्म के लिए मेरी बीवी को अपने घर ले गए थे। आज की रात भी मैंने इसकी यादों में तड़पते हुए गुजार दी थी। पूरी रात मैं इसके बारे में ही सोचता रहा था। अगले दिन जब मैं उसको लेने के लिए गया तो उसका वापस आने का दिल नहीं कर रहा था। बार बार उसकी आंखें भीग रही थी और फिर साथ आते हुए उसने अपना पालतू कुत्ता भी उठा लिया था। ये देखकर मैं मुस्कुरा दिया। इस वक्त तो मुझे वो किसी मासूम सी बच्ची की माने लगी थी। मुझे जानवर इतना पसंद नहीं थे और कुत्ते तो वैसे भी बहुत बुरे लगते थे मुझे। मगर अब मैं अपनी बीवी को
पहले ही दिन इस बात पर नहीं टोक सकता था। अगर पहले ही दिन मैं उसे कुत्ता लाने से मना करता तो इसका दिल मुझसे उठ जाता। वो यही समझती कि मैं कोई जालिम जाबिर हूँ और उसको इसकी जिंदगी मर्जी से जीने नहीं दूंगा। मैंने सोच लिया था कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसे समझा दूंगा। आज के लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा था। सबसे पहले मैं अपनी बीवी को बाहर खाना खिलाने के लिए लेकर गया। उसके अंदाज से मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे पसंद करती है। हमने बाहर काफी देर हो गई थी। अब वो गायब दिमाग सी हो गई थी। उसका ध्यान मेरी बातों की तरफ नहीं रहा था। बार बार वो घर चलने पर इसरार करने लगती। हालांकि मैं अभी यहाँ पर वक्त गुजारना चाहता था। मुझे ये सब अच्छा लग रहा था, मगर इसकी एक ही बात थी कि टॉमी अकेला होगा, वो भूखा होगा, मुझे घर जाना है। उसकी एक ही तकरार सुनकर मैं तंग पड़ गया था। न जाने उसने टॉमी को इस कदर सर पे क्यों सवार किया हुआ था। मुश्किल मैंने अपने गुस्से का गला घोंटा और फिर उसे लेकर घर आ गया। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया और वो टॉमी को उठाकर कुछ खिलाने के लिए बाहर ले गई थी। काफी देर तक मैं उसका इंतजार करता रहा। तब जाकर वो कमरे में आई और मेरे पास आने की बजाय वो बेड के दूसरे किनारे पर टिक गई थी। मेरे लिए अब अपने जज्बात पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। जैसे ही मैं उसके पास हुआ, मैंने उसको छुआ तो वो करंट खार कर पलटी थी और यकदम वो बहुत ज्यादा डर गई थी, जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। उसे यूं खौफजदा देखकर मैं मुस्कुरा दिया और उसे कहने लगा कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई गैर नहीं। मुझसे इस तरह क्यों डर रही हो, जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं जितना उससे प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा था, वो इतना ही पीछे हटती जा रही थी। उसका रवैया मेरी समझ से बाहर था। मैं उसके रवैये को उसकी फितरी शर्म समझ रहा था और फिर आहिस्तगी से मैं उसे अपनी तरफ खींचने लगा, मगर वो यकदम चीखने चिल्लाने लगी। वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी। मैं उसके यूं डरने से परेशान हो गया। क्या बात है सबा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मगर वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मुसलसल चीखे चिल्लाए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर मैं घबरा गया और मैंने फौरन ही उसे पानी का गिलास पेश किया था। काफी देर के बाद उसकी सांस में सांस आई थी। उसका दम घुट रहा था और वो बिस्तर पर दराज हो गई। उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। इसका ये रवैया मेरी समझ से बाहर था। फिर बिना उससे कोई बात किए मैं सोने के लिए लेट गया था। मैं सोचने लगा कि शायद कुछ दिन तक वो नॉर्मल हो जाएगी और मेरे और अपने रिश्ते को समझ जाएगी। मगर मैं जब भी उसके पास जाता, उसे अपना रिश्ता जताने की कोशिश करता, तो वो हड़बड़ा जाती और जोर जोर से चिल्लाने लगती। उसकी हालत मुझे पागल कर रही थी, मुझे जहनी तौर पर उलझा रही थी। मैं उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। उसे मैं प्यार से हासिल करना चाहता था और उसके दिल में अपनी मोहब्बत जगाना चाहता था। यूं जोर जबरदस्ती का मैं कायल भी नहीं था, मगर उसका रवैया भी मुझे परेशान कर रहा था। शादी को 1 महीना बीत गया था और अभी तक मैं उससे अपना हक वसूल नहीं कर सका था। शायद उसकी वजह ये थी कि मैं जरूरत से ज्यादा उससे मोहब्बत करने लगा था और उसे तकलीफ देने का ख्याल ही मेरे लिए सुहाने रूह था। मैं ये सोचने लगा था कि कहीं उसकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई दूसरा मर्द तो शामिल नहीं था जिसकी वजह से वो ये सब कर रही हो। ऐसा सोचकर ही मेरा अफशारे खून बुलंद हो गया था। अगर ऐसा था तो उसे मुझसे शादी क्यों की थी, मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? मगर जब मेरी उसके चेहरे पर नजर पड़ती थी तो उसकी मासूमियत में खोकर मैं अपने इस ख्याल को खुद ही नफी कर देता था। यूं भी उसका मोबाइल यहाँ वहाँ पड़ा रहता था। उसे मैंने कभी भी मोबाइल में मसरूफ नहीं देखा था और ना ही घर में कोई आता जाता था। वो अपने माँ बाप के घर भी बहुत कम जाती थी। ज्यादातर वक्त तो अपने डॉगी के साथ ही गुजारती थी और उसी के साथ बातें करती रहती थी और उसी को अपने साथ चिमटा कर रखती थी। अक्सर आधी रात तक वो उसे लेकर दूसरे कमरे में बैठी रहती थी और मैं उसका इंतजार करता रहता था। मैंने उसका मोबाइल अच्छे से छान मारा, मगर मुझे उसके मोबाइल में कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे मुझे ये अंदाजा हो कि उसकी जिंदगी में मेरे अलावा और कोई था। मगर उसके दिल में शायद टॉमी के अलावा किसी और की गुंजाइश ही नहीं थी। मेरे दिल में इस बात पर हैरानगी थी कि अगर उसकी जिंदगी में कोई नहीं था तो वो मेरे करीब आने से हिचकिचा क्यों रही थी। मेरे तमाम काम वो खुशसलूबी से सर अंजाम देती थी। घर के कामों के लिए उसने मुलाजमा रखने से इनकार कर दिया था। मुझे कहने लगी कि वो लोगों का काम कितना होता है, मैं खुद ही सारे काम अंजाम दे लूंगी। उसने मुझे कभी किसी बात के लिए तंग नहीं किया था, न कभी फरमाइश की और न रूठना मनाना, और मैं इन चीजों के लिए तरस गया था। मैं ये चाहता था कि हम दोनों के दरमियान नॉर्मल मियाँ बीवी जैसी जिंदगी हो, मगर न जाने क्यों वो इन बातों को समझ ही नहीं पा रही थी। उसकी अम्मी से भी मुझसे फोन पर यही शिकायत करती थी कि वो इनसे मिलने के लिए नहीं जाती और ना इनसे फोन पर बात करती है, और मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर मेरी बीवी के साथ मसला क्या है। वो किसी से भी मोहब्बत नहीं करती थी, बस वो अपने पालतू कुत्ते से ही वक्त ही गुजारती थी। उसकी जिंदगी में जिस कदर अहमियत वो कुत्ता रखता था, इतना कोई दूसरा नहीं रखता था। तंग आकर मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं इस कुत्ते को कहीं दूर फेंक दूं, मगर
जब मैं इसके तवक्को के रद्द-ए-अमल के बारे में सोचता तो अपने इस सोच को झटक देता था। मैं ये समझने से कासिर था कि आखिर वो इंसानों से ज़्यादा इसके साथ मोहब्बत से क्यों पेश आती थी। इस बात का जवाब मुझे इस दिन मिला था जब मैं वक्त से पहले घर आ गया था। अजीब आवाज़ों को सुनकर जैसे ही मैं इस दिन कमरे में दाखिल हुआ तो उसे मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था, क्योंकि मैं अमूमन इस टाइम घर नहीं आता था और वो अपने कुत्ते के साथ ही मसरूफ थी और जो कुछ वो उसके साथ कर रही थी उसे देखकर मैं अपनी जगह पर पत्थर का बुत बन गया था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये सब क्या था? मेरी बीवी आखिर कैसे ये सब कर सकती थी? वो सब कुछ जो मैं इससे चाह रहा था, जो मेरी ख्वाहिश थी, वो सब कुछ मेरे बजाय वो उस कुत्ते के साथ कर रही थी और ये किसी भी तरह से मेरे लिए काबिल कबूल नहीं था। कितनी ही देर में उसे हैरत से खड़ा देखता रहा। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो एकदम गड़बड़ा गई और अपनी हालत दुरुस्त करने लगी। वो बहुत बुरी तरह से डर गई थी। उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात थे। कितनी देर मैं बेयकीनी से उसकी तरफ देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सफाई में क्या बोले, क्योंकि मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था और फिर यकदम ही मेरा हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ता गया और उसके बाद एक थप्पड़ मैं उसके चेहरे पर मारता गया। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? जानती हो कितना बड़ा गुनाह कर रही हो तुम? शादीशुदा होकर भी, शौहर की मौजूदगी में भी तुम ये मकरूह काम कर रही हो। अब मुझे ये महसूस होने लगा था कि शायद मेरी बीवी पागल थी, वो नफ्सियाती मरीजा थी और अब तो शक शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी। मैं उसे जो कुछ करता हुआ देख चुका था, उसने इस शक पर मुहर शब्द करती थी। मैं उसे जबरदस्ती इसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गया था। अब मैं उसके साथ नरमी बरतने के हक में नहीं था। सारी बात सुनकर साइकियाट्रिस्ट ने मुझे बताया था कि मेरी बीवी के साथ कुछ नफ्सियाती मसाइल हैं, जो इलाज करने पर ठीक हो जाएंगे और मुझे इसके साथ बाकायदा इलाज करवाना पड़ेगा। जब मैं इसे घर लेकर आया तो वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी और मेरे आगे हाथ जोड़कर कह रही थी कि मेरे घर वालों को इस सब के बारे में मत बताना। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। और उसे देखकर मैंने नफरत से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। ये सब कुछ वो ना भी कहती तो भी मैं इसके बारे में किसी को ये बात नहीं बता सकता था। इस पालतू कुत्ते को मैंने दूर फेंकवा दिया था और अपनी बीवी को सख्ती से मना कर दिया कि आज के बाद तुम किसी जानवर के करीब मत दिखो। वो इस दिन के बाद से बहुत डर गई थी। मजीद कुछ टाइम तक इलाज करवाने के बाद वो नॉर्मल हो गई थी, मगर वो एक अजीब सी बीमारी में मुब्तला भी हो गई थी। उसके जिस्म पर हर टाइम खारिश रहती और खारिश वाले दाने बनते रहते। ये बीमारी उस कुत्ते के साथ वो सब कुछ करने की वजह से मेरी बीवी को लाक हुई थी। पूरा 1 साल मुझे लगा था अपना इलाज करवाने में और 1 साल के बाद वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हुई थी। अब खुद मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी, मुझसे माफ़ी मांगती थी। सारा दिन वो मेरी खिदमत करती थी, लेकिन मैं उसको नज़र भर कर भी नहीं देखता था। बस मैं उसका इलाज करवा रहा था, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा दिल उससे उठ चुका है और मैं खुद को बहुत उलझा हुआ महसूस करता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसके साथ मजीद रहूं या उसे तलाक दे दूं, लेकिन मैं चाहकर भी उसे तलाक नहीं दे सकता था। उसने मुझे कहा था कि उसने पहले कभी भी अपने कुत्ते से इस किस्म के ताल्लुकात नहीं रखे थे, लेकिन शादी के बाद उसने ये काम शुरू किया था, वो भी सिर्फ 2 बार। वो अपनी इस अमल पर बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन मुझे पता था कि मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ा था। इस वजह से वो शर्मिंदा थी और माफ़ी मांग रही थी। अगर मैं उसके राज तक नहीं पहुंचता तो वो मुसलसल मुझे ऐसे ही बेवकूफ़ बनाती रहती और इस कुत्ते के साथ ताल्लुकात इस्तबार किए रखती। और तब उसने मेरे हकूक़ अदा करने शुरू किए थे। मैं उसे बेतहाशा मोहब्बत करता था, तभी मैंने उसका ये राज किसी को भी नहीं बताया था और उसे इस सब के लिए माफ़ भी कर दिया था। उसके घर वाले भी मुझसे इसकी बीमारी की वजह पूछते तो मैं उन्हें भी टाल दिया करती थी। खुद को इनकी नज़रों में मशकूक बना दिया करता था, मगर कभी अपनी बीवी के बारे में इसके घर वालों को भी नहीं बताया था। जब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई तो तब वो मुझसे मोहब्बत भी करने लगी थी, मेरा एहसास भी करने लगी और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा भी थी। वो मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगती थी तो मैं मुस्कुराकर उसे कह देता था कि मैं तुमसे खफा नहीं हूँ, बस आज के बाद ऐसा कोई घिनौना काम मत करना। वो इस बात पर मेरी शुक्रगुजार थी और मैंने उसकी इज्जत रख ली थी और उसे किसी के सामने भी रुस्वा नहीं किया था।